Hello. Okay. Hello. 1 minute, sir. Okay. Yes. सर्व विद्यार्थ्यांना माझा आवाज येतोय? हो. Yes. हा. येस. सर, मी तुम्हाला केलं. ओके. Yes. Are you hear my voice? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Thank you. we start with. Okay. Okay, sir. 2 minutes. Good afternoon to everyone. First of all, I pay my tribute to Dr. Punjabrao, alias Bhausaheb Deshmukh, and the founder of this college, Babasaheb Sangrudkar, and also my tribute to founder of science faculty, Dadiji. On the behalf of Department of Physics, I am Dr. Sushil Charpe, convener of this online guest lecture series in physics. Welcome to today's guest speaker and dear students. Now, on the occasion of the Science Day 2021, we, the Department of Physics, JD Sangrudkar Mahavidyalay, Daryapur, with the collaboration of Amravati University Teachers Association, organized the guest lecture in physics from 22nd February to 28th February 2021. Today, our guest speaker is Dr. Shashank S. Kanwar. He is a well-known person in the physics fraternity. He did his MSc, MPhil, PhD in physics. His total teaching experience is more than 20 years. Presently, he is working as head of the Department of Physics, Sri R.G. Rathod Arts and Science College, Murtizapur. He published his research paper in reputed journals. Total research paper publications are 23. He published his research-oriented book that is named as Thin Film Science, and it is very popular book. He was the editor of Octa published textbooks of physics, BSc Part 2, Semester 3. He is working as a PhD supervisor at Sant Gadgil Amravati University from the 2014. He is working as a member of Board of Studies of Physics, Sant Gadgil Amravati University, Amravati. He is a member of many reputed associations such as Indian Association of Physics Teachers, Octa, Indian Society of Technical Education, Institute of Electronic and Telecommunication Engineers. So this type of dynamic person is with us today. So this so once again I am welcoming to Dr. Kanwar sir to deliver his talk. And please student, तुमचं पेन पेन्सिल जे काही आहे आज तुमच्या सोबत ठेवा आणि सरांच्या नोट्स नोट डाऊन करा. सो नाउ आय एम ओव्हर टू द Kanwar sir. Yeah. Very good afternoon to all of you, and thank you very much, Dr. Sushil Charpe sir, and the faculty members of the department of all the faculty members of the Department of Physics, Sangrudkar Mahavidyalay, Daryapur. I also thanks the organizing team of this very good interaction of the different faculty members with your students from different area. As well as I also thanks to the principal of Sangrudkar Mahavidyalay, Daryapur. I also thanks to the Amravati University Physics Teachers Association is a part of this organization. So my dear student, I think everybody can hear me as well as you can also, what about that, whatever the instruction given by Charpe sir that you follow, that you have a notebook, because our today's area is one of the very important part of your life,
as well as a career point of view. So we the students, particularly from a very what about that, a small town just like Daryapur. I also from a Murtijapur is very near to the Daryapur, only 20 kilometers is far away. So in view of that, the ability of the student and performance of the student at a taluka level is also one of the very important parameter. So in view of that, I want to uh, interact with you today and on the topic that is opportunities after the graduation, particularly those students who uh, want to continue the what about that career in physical sciences point of view. So definitely my today's area is focus on the opportunities, post-graduation opportunities after a graduation in physical sciences. Okay. So my dear student, right now everybody with me, uh, then we will start our interaction. So I think everybody is comfort in English, Hindi, and Marathi also there, because sometimes I use all the languages at the time of my presentation. If you can ask any question, you can ask after my interaction, then you can ask any question, whatever the question you want to ask me. Okay. So I hope everybody can see. Charpe sir, are you getting my presentation? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay. Thank you very much. Thank you. Once again, I welcome you all, and once again, I congratulate to all the organizers, because it's a very important activity for the student, and the activity which is on a very special day, that is known as a Science Day, because we are all a science community. So in view of that, we know about the contribution of the so many peoples of our India regarding to development of the science point of view or physical science point of view. So the occasion of Science Day is one of the very important day in a year, and you know that Sir C.V. Raman uh, is one of the well-known Nobel laureate of our what about that, the country to receive a first Nobel in the physics. So yeah, so definitely I want to interact with you, and my area is, or one of the topic is, that is a post-graduation opportunities after a graduation in physical sciences. Okay. So many students join here of Daryapur or near to the Daryapur. So what exactly the objective, why we choose a career as a science, particularly BSc in science, a bachelor degree in science. So definitely there is an objective behind our, what about that, the objective. So the post-graduation opportunities after graduation. So after your graduation, what are the opportunities you have that I want to share with you. So a very important thing, so many students after graduation. Yeah. So I request all the students don't do this type of things. And I also request the organizers that you can remove such type of students at the time of presentation. If somebody, Yes, sir. yes, yes. प्लीज स्टुडंट्स, तुम्ही तुमच्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर चुकूनही जरी बोट फिरवलं तर त्याच्यावर तो पेन येऊन जातो आणि ते टॅम्परिंग होतं. Yeah. प्लीज अवॉइड दिस. So please should take care, because this lecture is completely for you peoples, and you also thanks to your teachers and organizers कि आपके लिए इस प्रकार के lectures arrange किए जा रहे हैं. So that is also your responsibility to take care and support your department as well as all the faculty members.
Okay, I hope you understand what I want to convey. Fine. तो देखिए, जनरली हम ऐसे देखा गया है, हम देखते हैं कि बीएससी के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट बीएससी के बाद कुछ जॉब भी करना चाहते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट बीएससी के बाद कुछ ऐसे कोर्सेज करना चाहते हैं जिस कोर्सेज के बारे में हमको पता नहीं है या पता नहीं होता है जनरली हमारे रीजन्स में. सो दैट आई वांट टू शेयर टुडे विथ यू. तो जनरली सबसे पहले मैं बात करूंगा पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में, यानी एमएससी के बारे में और फिजिकल साइंसेस में. तो यहाँ पे कुछ मैं रीजन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, व्हाई वी opt or select the study for MSc after the BSc Physics. So there are some reasons. So one of the things that after your MSc, lot of opportunities in private industry as well as in public sectors also, or in government sectors also. Okay, so this is one of the reason. That's why the student choose as a career and doing MSc in physical sciences or any sciences. Second is you can apply for many government jobs in which the MSc courses are required as a eligibility criteria. So my dear student, there are so many government opportunities also you have after you perform or you completed your MSc. Then you can also find a job at a national institutes or research centers, just like a ISRO, DRDO, then Baba Atomic Research Centers. There are so many, what about that institutes, reputed institutes and national level institutes in India, they require MSc students. And definitely one of the very important parameter of our life, we want to settle down as well as for more paid jobs and a reputed profession. So these are some reasons that's why the students opt the study for a post graduation is there. So what are the opportunities particularly in physical science post graduation? So some post graduation courses after BSc Physics that I want to share here. So there are, you know that physics is a very versatile branch, and there are so many areas where physics works as well as develop in all directions. So there are so many classical branches also there, so many applied branches also there. So before 19th century, there was a classical era of physics, and after 19th century there is a modern era of the physics. So there are a lot of sub branches, and every branch is a very, very important regarding the applications point of view. So there are so many MSc courses in a specialization of according to the branches available in the physics, just like acoustical physics, astrophysics, astronomy, biophysics, then fiber optical physics, fluid physics, geophysics, then material science and materials physics. There is also another important area, that is radiation physics as well as the medical opportunities regarding the physics peoples are there in medical area or health area. Then molecular physics, nuclear physics, optical physics, plasma physics. So all these are the branches, or these are the areas that you can do, or you will take admission for a MSc physics is there. But what about these courses are available? Where these courses are available? So everybody know that in our university also, our parent university also have a MSc courses, MSc in physics, MSc in chemistry, mathematics, biology. Then what about that different also science subjects? In our university, you know that Sant Gadge Baba Amravati University having a department, and some reputed institutes in our area at every district level as well as taluka level also. But with these university, our parent university, there are so many national institutes
and central universities also have a opportunity for us to get an admission for MSc. तो अदर देन अवर यूनिवर्सिटी, यानी हमारी जो पेरेंट यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे हम लोग MSc फिजिक्स में कर सकते हैं और अलग अलग सब एरियाज में कर सकते हैं, सब ब्रांचेस में कर सकते हैं। तो उन्हीं के ऊपर मैं फोकस करूंगा। तो कौन सी इंस्टीट्यूट्स है और कौन से नेशनल रेप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे हम पोस्ट ग्रेजुएशन और इंटीग्रेटेड कोर्सेस हम कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे MSc और MSc के साथ साथ MSc plus PhD. Already you know that I am talking about the post graduation opportunities in physical science. So definitely my motive is subject is physics. Okay, so in view of that, these institutes available for us. ऐसा नहीं है कि हम दरियापुर के हैं या मुर्तिजापुर के हैं तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं जा सकते या हम में एबिलिटी नहीं है। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि जो रूरल एरिया के जो स्टूडेंट्स है या जो तालुका लेवल के जो स्टूडेंट है, इनमें जितनी एबिलिटी होती है तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूट में पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च करना है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे एडमिशन भी ले सकते हैं, हम हमारा करियर भी बना सकते हैं। लेकिन इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती है और कुछ मेथड्स होती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल गेट एडमिशन। तो व्हाट एग्जैक्टली द एग्जामिनेशंस फॉर MSc and PhD physics courses? So now you can see here there are so many examination name here and different courses are offered. Okay, so just like that, one of the very important national examination is JAM, which is conducted by every year, which is conducted by different IIT, Institute of Technologies. These are the national institutes, reputed institutes of the Human Resource Development Government of India, and definitely affiliated by UGC and all the government institutes. So basically these are the national government institutes, IITs, Indian Institute of Technology, and यहाँ पे कुछ courses हमारे लिए available है। I will also share in detail कि कौन से courses हमारे लिए available है। Okay, इसके बाद नेस्ट करके एग्जामिनेशन भी हम लोग अपीयर कर सकते हैं, जैसे जिसको नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। ये टेस्ट को भी हम लोग परफॉर्म करने के बाद हम बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे MSc प्रोग्राम्स है हम लोग एडमिशंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। देन देयर इज अ JEST, जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। दिस आल्सो है वन ऑफ द एग्जामिनेशन, नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस। यहाँ पे भी हमारे लिए बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है और बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, देन TIFR है, और अभी जो फ्रॉम लास्ट 5 years द गवर्नमेंट आल्सो लॉन्च द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज IISERs. This also is a part of our science, and these institutes are very reputed institutes right now all over India. Right now total 9 institutes in all over India. 7 already launched in before 5 years. Right now 2 launch. One is at Tirupati and one is at Tiruvananthapuram. So this IISERs is the Indian Institute of Science Education and Research. यहाँ पे भी हमारे लिए कुछ courses available है. So I will interact with you and share with you detail of all these examinations and what is the criteria, how we can give these examinations, how we will get admissions in these institutes. Okay, so I hope कि जो भी स्टूडेंट मेरे साथ है यहाँ पे BSc फर्स्ट ईयर से लेके तो BSc फाइनल ईयर तक स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ है, आई होप सो। तो जो PSc फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उनके पास अभी 2 साल है, और जो सेकंड ईयर में है उनके पास भी 1.5 year है। अगर आप लोग आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमको इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो डेफिनेटली आप लोग
इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स की, जिसको कहा जाता है पॉपुलरली जैम। आई होप कुछ स्टूडेंट को ये पता होगा आपके इंस्टीट्यूट्स के, और कुछ स्टूडेंट की प्रिपरेशन भी शुरू होगी या कर रहे होंगे, या किसी ने कोई डिसाइड किया होगा कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली दिस टेस्ट? तो व्हाट इज जैम? जैम इज अ जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, where we get admission on the basis of this test. These are the institutes. These are all the reputed institutes from IISc Bangalore and all the IITs as well as IISER that already I tell you. So all these are the national institutes and conducted this examination every year. And what exactly? After that, you will get admission here for post-graduation as well as for research or integrated programs. So what exactly the JAM? So it is a joint admission test for masters and is an admission test to MSc and other post BSc programs where at Indian Institute of Technologies. Okay, so IITs है, IISERs है, what about that Indian Institute of Science है, IIS है, यहाँ पे हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एग्जामिनेशन का? ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट साइंस की तरफ मोटिवेट हो और अपना करियर बनाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है साइंस में। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जैम इज टू प्रोवाइड एडमिशन टू वेरियस पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल एज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड मीन्स MSc plus PhD dual program. This is also available for us. Okay, after BSc programs are there. Okay, so you can make your career in the science. So who can, yes, who are eligible to take the JAM? So what exactly the eligibility criteria? So eligibility criteria की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन नेशनल्स एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स के भी स्टूडेंट्स ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, और इस एग्जामिनेशन के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ग्रेजुएशन पे जब है तभी आपने एग्जामिनेशन देना चाहिए। आप ग्रेजुएशन के बाद भी ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं अगर ओके if you perform a post graduation in our parent university, and if you want to take admission in Indian Institute of Science, such type of institutes also, you can give the examinations. So there is no age restriction to give this examination. Then what exactly the qualification? Definitely the qualification is candidates who have appeared or due to appear for their degree examination. तो जो फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं या जो फाइनल ईयर में अभी अपीयर होने वाले हैं, जो फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुके हैं या एग्जामिनेशन देने वाले हैं, इन स्टूडेंट्स these students are eligible for to give this examination or appear to these examinations. But there is a criteria. So what exactly the criteria? The student required at least 55% in the BSc or at graduate level. Okay, for general and OBC category, and other categories they require 50% marks. So this is a very important criteria if you want to appear this examination. Okay, so then what is application procedure? Everything is online right now, and you know everything is online right now. So all these examination procedure is online. You can register yourself by online. There is a one institute every year. This examination conducted one of the IIT in India. So 2020 examination organized or conducted by IIT Kanpur. Right now 2021 का डिक्लेरेशन अभी हुआ नहीं है, ठीक है, अभी मेरे ख्याल से डिक्लेरेशन होगा तो 2021 का भी
एप्लीकेशन हम लोग प्रोसीजर कर सकते हैं। तो जो भी आईआईटी इंस्टीट्यूट या जो भी आईआईटी इंस्टीट्यूट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की, वो इंस्टीट्यूट एक अपना खुद का वेब पेज बनाता है और उस वेब पेज पे आप लोग एप्लीकेशन प्रोसीजर कर सकते हैं। तो आपको पहले रजिस्टर करना है, फिर रजिस्टर के बाद आपको आपका एप्लीकेशन सबमिट करना है, और जो भी whatever the necessary fee for the examination, that is known as application fee, that also you can paid via चालान और नेट बैंकिंग। ओके, और फिर ये एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद you take a printout of your application and send whatever the institute what about that organize this examination in that particular year. So that is known as an application form. You can send hard copy to that institute. तो टेक्स्ट पैरामीटर आता है एडमिशन प्रोसीजर। जो स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशंस को क्लियर होते हैं, जिसमें मेरिट लिस्ट लगता है, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट लगता है, जनरल कैटेगरी का एक अलग मेरिट लिस्ट लगता है, and according to the merit list the admission procedure conducted. So the candidates who clear JAM will be able to seek admission to the programs offered by the IITs and IISc. Okay, so all these things is available on the website. There is a one website which is what about that, developed by the organizing institute, and you can continuously visit that website. So you will get everything whatever you want to know about the admission procedure, as well as regarding the all the fees are there. Now the next part is what type of the examination pattern, because it is a national examination, so there is a pattern. So the pattern is not fixed. The pattern sometimes the examination is conducted descriptive type, sometimes it is objective type, sometimes the descriptive as well as objective type. So it is depend on the organizing institute. Just like that, already I tell you, every year one of the IIT, any IIT having a responsibility to conduct the examination. So in view of that, they decided, their committee decided the examination is descriptive or objective or in both mode. So in view of that, ये डिपेंड करता है कि जैसे 2020 का आईआईटी कानपुर का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव लिया है। उसके पहले आईआईटी मुंबई ने कंडक्ट किया, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों थे। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर आता है कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं और हम लोग एमएससी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी you will get the information just like a mathematics, chemistry, geophysics, geology, physics, biotechnology. तो बीएससी के सभी ब्रांचेस के जो स्टूडेंट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, फिजिक्स, सभी स्टूडेंट ये एग्जामिनेशंस को अपीयर हो सकते हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट एग्जैक्टली द पैटर्न। सो जैसे मैंने कहा कि ये एवरी ईयर इज चेंज, बट जनरल जो पैटर्न है दैट आई वांट टू शेयर। तो लास्ट ईयर जो पैटर्न था, इट हैव 60 क्वेश्चंस and carrying a total of 100 marks, and it consists of 3 sections, A, B, C. Okay, so section A, that is a 30 MCQs, multiple choice questions are there. Okay, then section B, 10 multiple select questions, and section C, 20 numerical type of questions are there. So it depends upon the organizer and organizing institute what type of the pattern is there, but generally the pattern is fixed. So that already I shared, that 60 questions having 100 marks. Okay, so what exactly the another important thing that that is for JAM, one thing is negative marks. तो negative mark system भी इसमें होती है क्योंकि competition बहुत है, ये national level का examination है। जो सीट्स अलॉटेड सीट्स है पूरे नेशनल लेवल पे वो कम है और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अपीयर होते हैं। So in view of that, there is a negative marking system.
तो निगेटिव मार्किंग सिस्टम होता है इसमें, जैसे हर एक सेक्शन में निगेटिव मार्किंग सिस्टम होता है, यानी अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके कुछ मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं. So there is a procedure so that you will get everything from the website of the organizing institute. Okay, but in this examination, the negative marking is there. Then what are the institutes and what programs available for us in these institutes? Now you can see, if I am talking about IIT Mumbai, so there is a 2-year Master of Science program in these subjects. Just like that, you can see right now the applied geology, applied geophysics, biotechnology, chemistry, mathematics, and physics is there. There is one integrated program also available for us, that is known as energy physics. So this is also one of the very important program, and lot of opportunities right now in coming days because non-conventional energy sources development is there, and in view of that, the energy physics candidates they require. So you can see right now here the MSc PhD dual degree program in energy physics. So what is meant by dual degree program? Dual degree means it is a 5-year integrated program. 2-year is MSc and 3-year is your PhD. So that also you can get admission on the basis of your JAM score. Okay. So there are so many institutes in a such a way that these are different institutes: IIT Delhi, IIT Guwahati, IIT Kanpur, and these are the programs you can see right now for us. Other than our parent university, we know only our parent university, that is Amravati University. Okay, but right now you know that from this particular presentation or this interaction, you will get the idea how many opportunities for us at the national level is there. So IIT Delhi, there is a 2-year Master of Science programs in a basic science subject. Okay, you can see at IIT Guwahati, IIT Kanpur is there. In the same way, IIT Kharagpur, IIT Madras, IIT Roorkee. Yeah, Roorkee having so many programs for us. There is a Master of Technology, MTech program in geophysical technology and geological technology. There is also a Master of Computer Applications, MCA, also 3-year interdisciplinary program also there for us. So all these are the program for us at the old IITs. Right now, there are so many new IITs also launched before 5-6 years. Just like that, IIT Indore, IIT Kanpur already is old is there. IIT Bhubaneswar. These are the new IITs. So you will get also admission here. Then IIT Gandhinagar, Gujarat, IIT Hyderabad. These are new IITs launched before 5 to 6 years, and you will get also admission for Master of Science degree in basic sciences subjects. So इस पूरे डिस्कशन को अगर हम 1 पेज पे अगर हम लोग इसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, तो व्हाट इज जैम? सो जैम इज अ जॉइंट एडमिशन टेस्ट conducted by Indian Institute of Technology every year. Generally, this examination is held in February. Right now, due to COVID, the examination is postponed, and mode of application is online. Already, I tell you the age criteria. There is no age criteria. Okay, you can give examination anytime. Examination pattern having both the mode is there, objective as well as descriptive. It depends upon the organizing institute. Very important is a negative marking system is there. So in view of that, the preparation is very important, and very important is validity of JAM IIT score. तो अगर आपने जैम दिया है और आप मेरिट लिस्ट में आ गए, या जो भी आपका एक रैंक आया है ऑल इंडिया लेवल में, उसका जो स्कोर है वो एडमिशन के लिए आपको 1 ईयर वैलिड होता है. उसके बाद आपको फिर से एग्जामिनेशन को अपीयर होना पड़ेगा. ठीक है. सो ऑल this is a very important type of national examination, and you will get admission at National Institute on the basis of this examination.
Yes. Fine. So these are some physics books, useful books for the preparation of this examination. So what exactly the syllabus of this examination? The syllabus of this examination is our university graduation syllabus. ओके जो आप अभी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में जो बीएससी तीनों साल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, वो पूरा सिलेबस आपका इस एग्जामिनेशन के लिए होता है. ठीक है. सो देयर आर सम बुक्स फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ फिजिक्स. ओके. नाउ दिस इज वन ऑफ द 2020 brochure. And I already tell you 2020 JAM organized by IIT Kanpur, and this examination is already conducted and the students getting the admission. So the brochure consists of everything, whatever we want to know. What is eligibility criteria, what exactly the minimum education qualification, examination mode, pattern, and everything is there. Okay. So you visit the JAM website every year, you will get everything. Okay. So this is one of the examination. Now the second examination that already I tell you, there is another examination is joint entrance screening test. So that is popularly say that is JEST. So just like these IITs, there are so many other institutes also in India offering so many postgraduate courses for us. So what different institutes for us, as well as what type of examination is there? So the joint entrance screening test is one of the popular examination at national level conducted by so many institutes. Now you can see here, these are the different institutes conducted this examination every year, and to get admission for different courses. So what is JEST? So this is a common qualifying test for admission to the integrated MSc, MTech, PhD programs in physics or theoretical computer science or neuroscience at different research institute in India. So you can see right now there are so many specializations here: physics, computer science, neuroscience, and other also. So what institutes for us? But before that, we want to understand the eligibility. Once again, the eligibility is any graduate of UGC university. So there is a MSc, MTech, PhD programs at, these are the institutes that I want to talk. That is TIFR, IISER, HRI. Okay, these are different institutes offering the MSc, PhD programs in physics. Okay, somebody's audio is on. Yes. Anybody want to ask any question? Fine. Now the criteria is graduate with BSc Physics or BE or BTech degree will be considered for the integrated post BSc PhD programs. So there are so many institutes and so many courses. तो हर एक इंस्टीट्यूट का अपना एक खुद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन जनरली जो सभी इंस्टीट्यूट का जो क्राइटेरिया है उसमें बीएससी स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, IIA. ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है. तो व्हाट एग्जैक्टली पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, कौन से इंस्टीट्यूट है? जैसे हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद, जिसमें हम लोग थ्योरेटिकल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं. देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, दिस इज अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र राइट नाउ, एंड देयर आर सो मेनी एरियाज वेयर यू कैन join and make a career in science.
Then International Center of Theoretical Science, Bangalore है, TIFR is a branch of TIFR, Bangalore. Then Satyendra Nath Bose National Center for Basic Sciences, Calcutta है. This is a very old institute, very reputed institute. Also, one of the very important institute belong to C.V. Raman. So Satyendra Nath Bose National Center for Basic Sciences, यहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कोर्सेस है हमारे लिए, जहाँ पे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं. नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, TIFR पुणे, ठीक है. देन TIFR सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, हैदराबाद. ये सभी नेशनल इंस्टीट्यूट्स है. इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस है चेन्नई. देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम. यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट, जैसे नैनो स्केल प्लाज्मोनिक्स है, देन सॉफ्ट कंडेंस मैटर है, फोटोनिक्स है, एनर्जी मटेरियल्स है. सब ट्रोडन कोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल है. हम लोग यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज परफॉर्म या ज्वाइन हो सकते हैं, कर सकते हैं. देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स भी है बेंगलोर में. देन नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर में भी है. दीज आर ऑल द इंस्टीट्यूट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट. तो ये सभी इंस्टीट्यूट में अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो कौन सी एग्जामिनेशन हमको देनी पड़ेगी? जेस्ट एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी. और ये नेशनल एग्जामिनेशन है. इस एग्जामिनेशन को आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ये एग्जामिनेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं. सो एप्लीकेशंस फॉर जेस्ट वंस अगेन ऑनलाइन मोड है. इसमें भी जेस्ट की एक वेबसाइट है जिसमें आप लोग विजिट करके ये सभी एप्लीकेशन प्रोसीजर आप परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूनिक सबमिशन नंबर मिलेगा. दैट यूनिक सबमिशन नंबर इज यूज अप टू योर एडमिशन. तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे है. और जनरली जो हम लोग एप्लीकेशन करते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, उसी प्रकार की एप्लीकेशन प्रोसीजर है. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे स्कोर की बात करूँ तो लास्ट लाइन में मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया है कि जेस का स्कोर भी 1 ईयर के लिए वैलिड होता है. यानी अगर आप रैंक में नहीं आए या रैंक में आने के बाद आपको एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट नहीं मिला जो आपको चाहिए था, तो फिर से आपको जेस्ट देना पड़ेगा और आपका स्कोर आने के बाद यू विल गेट एडमिशन whatever you want to choose. So this is a very important type of examination, second examination, that is JEST. There are so many exam centers. There is a Nagpur near to us is an exam center. Amravati is not an exam center. Akola is not an exam center. Nagpur is an exam center. Now this is a organization, www.jest.org.in. This is a website. Everybody should visit this website. You will get everything, whatever I want to tell you. Okay. जो मैंने अभी बताया वो मैंने भी कहीं से ना कहीं से तो भी आपके लिए मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ. तो ये सब अवेलेबल है. आप इस विजिट कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन पे. यू विल गेट एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन. ओके. सो दिस इज सेकंड इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन आफ्टर योर ग्रेजुएशन. थर्ड में कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स पे फिर से आऊंगा. जैसे मैंने कहा कि कुछ अभी 3-4-5 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने, HRD मिनिस्ट्री ने और कुछ इंस्टीट्यूट्स लॉन्च किए हमारे लिए, और ये स्पेशली हमारे लिए है क्योंकि ये साइंस एजुकेशन और रिसर्च के लिए मोटिवेट करने के लिए इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं. जो BSc स्टूडेंट है उनके लिए बनाए गए हैं. एंड दैट इज नोन एज इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च. इसको पॉपुलरली कहा जाता है आइसर. सो आइसर, इसमें पहले तो कुछ 7 आइसर्स थे, जैसे IISER पुणे है, देन कलकत्ता है, बहरमपुर है, तिरुपति अभी तो लॉन्च हुआ है. ठीक है. और तिरुवनंतपुरम में दिस 7 IISER आर देयर. ऐसे कुछ और 1-2 IISER अभी लॉन्च हो रहे हैं. तो दीज आर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स. यहाँ पे भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है. So what is IISER? The Ministry of Human Resource Development, Government of India
set up 7 Indian Institute of Science, Education and Research in India at Bahrampur, Bhopal, Calcutta, Mohali, Pune, Thiruvananthapuram and Tirupati. तो यहाँ हमारे लिए कौन से प्रोग्राम्स है? यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हमारे लिए है। एमएससी हम लोग कर सकते हैं और प्लस पीएचडी भी है, ठीक है। तो यू विल गेट एडमिशन हियर। इनकी भी एक एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है IISER की, ओके। या कैन आई टॉक विथ ऑर्गेनाइजर Sarkis sir? Yes, sir. Everything is going on well? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If anything you can immediately tell me. No, sir. Yes, sir. Okay, काही problem thank you. सांगतो मी सर. ठीक है, thank you. Now, what exactly the programs for us at IISER? So these are the programs in physical sciences, mathematical, geological, some engineering branches also there, then some economic branches also there. Data science is a new branch, is a lot of opportunities in data science right now. Is a very popular branch. You can do a MSc or post graduation in data sciences. तो these are the programs at IISERs. Eligibility फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि BSc के स्टूडेंट इसको अपियर हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि दरियापुर के स्टूडेंट अपियर नहीं हो सकते, सिर्फ अमरावती के और अकोला के हो सकते हैं, ठीक है, या मूर्तिजापुर के नहीं हो सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो रूरल एरिया के जो स्टूडेंट है, उन्होंने अगर डिसाइड कर लिया कि मेरे को यहाँ करियर करना है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, रूरल एरिया के स्टूडेंट को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, या वो सक्सेस रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वांट टू डिसाइड फर्स्ट, ठीक है। तो डिसीजन ये इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट विद BSc, BE, BTech, MBBS or an equivalent degree from any recognized institute can apply for the integrated PhD programs in different branches. Yes. Once again, यहाँ पे भी कुछ क्राइटेरिया है। 60% मार्क्स हमको चाहिए यहाँ पे, या अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, ओके। इनका एक खुद का एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। इनकी एक ऐड आती है टाइम्स ऑफ इंडिया में, या जो लोकल पेपर से इंग्लिश पेपर से, उसमें इनकी ऐड आती है, या इनके जो वेबसाइट्स है IISER के, आप लोग उस वेबसाइट्स पे भी विजिट करके you can check the examinations notifications, okay. So yes, who can apply? अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि जैम का जो स्कोर है, देखो जैम का स्कोर अगर आपका आ गया, इसके पहले जो मैंने बताया जो एग्जामिनेशन, उस जैम के स्कोर पे भी आप IISER में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर जैम स्कोर, या जैम इन केमिस्ट्री, जैम इन जियोलॉजी, जैम इन फिजिक्स। तो अगर आपका जैम का स्कोर आता है, तो आप डायरेक्टली यू कैन अप्लाई टू गेट एडमिशन फॉर द एडमिशन। अदरवाइज यू आल्सो अप्लाई फॉर द examination or entrance examination conducting by these IISER institutes, okay. They also take their own examinations, but JAM score is also preferred. So these are third important area where you will get opportunity. Then there is another important institute, and that is known as NISER, that is National Institute of Science, Education and Research. जैसे अभी हमने IISER देखा, इसी प्रकार से IISER के पहले से ऑलरेडी NISER ये वर्कआउट कर रहा है, ये इंस्टीट्यूट्स, जिसको राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज NISER एंड व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज, व्हाट अपॉर्चुनिटीज फॉर अस एट NISER? तो अबाउट NISER, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है हमारे इंडिया का, इनके तरफ से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, और ये इंस्टीट्यूट्स रन होते हैं। तो इसमें हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? यहाँ पे फिर से हमारे लिए MSc PhD प्रोग्राम अवेलेबल है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अवेलेबल है,
और इसको हम लोग इसके एग्जामिनेशन को हम अपीयर हो सकते हैं और हम इसके लिए हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे दो इंस्टीट्यूट है नाइसर के जहाँ पे हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। एक है भुवनेश्वर में और एक है मुंबई में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर and University of Mumbai Department of Atomic Energy Center for Excellence in Basic Sciences Mumbai. So these two institute is a part of National Institute of Science Education and Research और इनके तरफ से एक नेस्ट करके एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, दैट इज नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, तो नेस्ट एग्जामिनेशन अगर आप ये अपीयर होते हैं तो ये इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन मिलेगी। तो once again the criteria is BSc first class, ठीक है, और BE BTech in engineering also, और फाइनल एग्जामिनेशन स्टूडेंट जो अपीयर स्टूडेंट है वो इस एग्जामिनेशंस को अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो this is another important area. Then in a continuation of all this, there is another important examination, entrance examination, and that is known as Central University's Common Entrance Test. Now, what is the concept of Central University? Central University is run by UGC, University Grant Commission, and HRD Ministry, Human Resource Development. So these are the central universities, not the state universities. जैसे हमारी यूनिवर्सिटी जो है अमरावती यूनिवर्सिटी, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, नागपुर यूनिवर्सिटी ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, कंट्रोलिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड approved by UGC, affiliated by UGC. So in the same way, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हमारे लिए अवेलेबल है और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की मान्यता होती है। तो यहाँ पे भी हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर अस आफ्टर आवर ग्रेजुएशन इन दीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, and these are very reputed universities having every facilities, every infrastructure and everything is there. तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है जिसको CUCET कहते हैं। तो CET करके हमको पता है, इसमें CUCET लगा देंगे तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सॉरी नॉट कंबाइंड, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। सो 2020 का ये मैं ब्रोशर शेयर कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया है and right now the admission procedure is going on. Okay, so all these are the institutes. There are so many central universities, every state having central universities. Okay, central university Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Rajasthan, there are so many central universities are there for us. Yes, तो आफ्टर 12th के बाद भी हमारे लिए यहाँ ग्रेजुएशन कोर्सेस है और ग्रेजुएशन के बाद भी हमारे लिए यहाँ पे कोर्सेस है। सो दीज आर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। या सो नाउ आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, व्हाट अदर अपॉर्चुनिटीज फॉर अस? जस्ट लाइक दैट आई ऑलरेडी टेल यू, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एट IITs, at ISER, then at different national institutes, and then we have some national institutes, science education institutes also, NISER. So all these are, as well as central universities. So all these institutes having different post-graduation courses for us, and we can take admission there. But after all these, there are other areas also for us. One of the popular areas now last few years, that is opportunity in forensic science. So what is meant by forensic science and what opportunities for us? Okay, तो forensic science ये
is one of the very important area, because you know that everywhere the information technology is developed, and utilization of ICT tools, that is the social media and different mediums that we use for transferring our information, transferring our, or for communication. So at the same time, there are some problems also in social medias, and to avoid these problems, to find these problems, to select these problems, we need such type of requirement. So that requirement is fulfilled by this course, that is forensic science. So forensic science basically to solve or investigating crimes in the this online media. Okay, you know that हम बहुत बार ऐसे सुनते हैं कि फ्रॉड हो गया, ठीक है, हमारे अकाउंट के पैसे चले गए, या कुछ अनवांटेड मैसेजेस हमको आ रहे हैं, somebody is blackmail. So this type of crimes, that is online crimes, are there. So to what about that, solve these problems and investigate these things, we require some persons, we require some technicians, we require some human resources to check such type of things and to find out. So for that purpose, this forensic science is a area that is developed. तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है. यहाँ पे बीएससी के स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, सोशल साइंसेस के स्टूडेंट भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं. तो एग्जैक्टली यहाँ पे साइंस और लॉ, ये दो जो एरियाज है, इन दोनों को कंबाइन करके ये अपॉर्चुनिटी या ये एरिया हमारे लिए अवेलेबल है. तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हमारे लिए है, जिसमें हम लोग फॉरेंसिक साइंसेस में हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या कुछ डिप्लोमाज है वो भी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं. तो प्राइवेट कॉलेजेस भी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है. गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉरेंसिक साइंस का जो कॉलेज है, ये हमारा औरंगाबाद में है. ओके, सो औरंगाबाद में आप उस इंस्टीट्यूट को आप विजिट करो उसके वेबसाइट पे. सो यू विल गेट एवरीथिंग, द अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेंसिक साइंसेस आफ्टर ग्रेजुएशन. So some private institutes, some private universities also there, private colleges जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी. ओके, एम्स दिल्ली में भी इस प्रकार के यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एमिटी यूनिवर्सिटी, ये कुछ यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे फॉरेंसिक साइंसेस में हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं. तो इसमें बैचलर कोर्सेज भी अवेलेबल है, मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल है, डॉक्टरेट भी है, डिप्लोमा है, और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो ग्रेजुएशन के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ कोर्सेस मैं शेयर कर रहा हूँ, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी हम फॉरेंसिक साइंस में कर सकते हैं, एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी में हम कर सकते हैं, एमएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर फोरेंसिक में हम कर सकते हैं. हम एडवांस डिप्लोमा हमारे लिए अवेलेबल है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी अवेलेबल है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी हमारे लिए अवेलेबल है. तो इसकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, हर जगह ग्रेजुएट लिखा है, a graduate degree in science, a graduate degree in science, a graduate degree in science. So after your graduation, you can also continue the post graduation in this area that is known as forensic science is there. Okay, so some new areas that I want to share to you. Yeah, there is another important examination and institute for us for post graduation is Birla Institute of Technology and Science. This is a very well-known institute which was started by Birla and is equivalent to IIT, Indian Institute of Technology. जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो रेप्यूटेड हमारे इंस्टीट्यूट है, उसी लेवल का ये इंस्टीट्यूट है जिसको बीट कहा जाता है. बीट्स यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस. तो इसका जो मेन सेंटर है वो पिलानी है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी. और अभी इसके बहुत सारी ब्रांचेस भी
इन्होंने लॉन्च की है, जैसे दुबई में है, गोवा में है, हैदराबाद में है। और हमारे लिए यहाँ पे क्या है, इस इंस्टीट्यूट में हमारे लिए एमएससी यहाँ पे अवेलेबल है और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी हमारे लिए अवेलेबल है। तो ये इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है लेकिन रेप्यूटेड है। यहाँ पे अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो अगर आप एमएससी होते हैं या पीएचडी होते हैं तो यू विल गेट अ प्लेसमेंट or jobs in National Research Institute, because this institute is collaborate with so many national institutes. So this is a private institute. थोड़ा यहाँ पे हमको फीस थोड़ी ज्यादा है यहाँ एडमिशन के लिए, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमारे लिए है। तो इनका भी एक एग्जामिनेशन होता है जिसको बिटसेट कहा जाता है। सो बिटसेट 2020 ये लास्ट ईयर का इनका एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है www.bitsadmission.com। तो इस वेबसाइट पे आप विजिट करके इस इंस्टीट्यूट के बारे में या यहाँ पे जो कोर्सेस अवेलेबिलिटी के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर 100% you will get a job after you completing your MSc or integrated programs. So yes, yeah. So my dear student, there is a endless in view of the limitation of time, कुछ important area है मैं share कर रहा हूँ। और एक area है, एक opportunity है हमारे लिए जो BSc के बाद हम कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और कुछ जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमास भी हम लोग कर सकते हैं, जिसमें एक न्यूली ऑप्शन हमारे पास है दैट इज नोन एज रेडिएशन फिजिक्स। तो radiation physics is another important area where we want to make a career. Okay, so what is this radiation physics? So definitely radiation का मतलब everybody know, okay, is energy। क्योंकि अगर फिजिक्स की बात करें तो दो ही एंटिटी है जिससे फिजिक्स पूरा ब्रह्मांड हमारा जो है वो बना है, मैटर एंड रेडिएशन। ओके, सो एवरीथिंग इज मैटर एंड एवरीथिंग इज रेडिएशन, बोथ आर related with each other. So on the basis of that यहाँ पे हमारे लिए क्या है, so there is a medical physicist करके एक opportunity हमारे पास है, yeah, we can make this career medical physicist. So medical physicist, you know that so many private hospitals and government hospitals right now, particularly the COVID right now is going on. इसमें अगर मैं रेडिएशन थेरेपी की बात करूँ तो बहुत सारे नेशनल और रूरल एरिया में भी अभी कैंसर हॉस्पिटल्स लॉन्च हो रहे हैं और डे बाय डे कैंसर हॉस्पिटल्स की शुरुआत हो रही है। अमरावती, अकोला, यहाँ पे भी कैंसर हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स लॉन्च हो गए हैं। तो वहाँ पे जो रेडिएशन थेरेपी चाहिए, you know that radiation therapy is a very need that is popularly known as chemotherapy to damage or to minimize the tumors, that is cancerous tumors in the human body. So for that purpose we need some radiations. So in view of that, there are so many different type of radiations, that is gamma radiations and all that things. So there are so many instruments for the radiations, that is popularly known as radiation therapy. सो रेडिएशन थेरेपी के लिए वहाँ पे हमको ह्यूमन रिसोर्सेस की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको ये पता होना चाहिए कि कितने ट्यूमर पे, कितने साइज के ट्यूमर पे, कितनी इंटेंसिटी का गामा रे का रेडिएशन हमको इंसिडेंट करना है। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट है और फिजिक्स में हम लोग रेडिएशन पढ़ते हैं, गामा रे पढ़ते हैं। तो मेडिकल फिजिसिस्ट ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है और ये हम हमारे खुद के सिटी में हमको जॉब मिल सकता है यहाँ पे। सो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल्स आर देयर। सो देयर इज अ रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर्स, यहाँ पे हम लोग बन सकते हैं मेडिकल फिजिसिस्ट का कोर्स करने के बाद। या तो दीज आर डिफरेंट, व्हाट अबाउट दैट कोर्सेस, जैसे डिग्रीज है, डिप्लोमाज है, इसमें रेडिएशन फिजिक्स में कुछ कोर्सेस है। या now what are the courses for us, that is MSc in radiation physics,
Now you can see the qualification: BSc in Life Sciences, Physics, Chemistry, Mathematics. करियर ऑप्शन देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि मेडिकल फिजिक्स बन सकते हैं हॉस्पिटल्स एंड ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद एमएससी इन मेडिकल फिजिक्स, रेडिएशन फिजिक्स एमएससी अलग है, मेडिकल फिजिक्स एमएससी अलग है, ठीक है। डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, ठीक है, ये एमएससी फिजिक्स के बाद आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। दिस डिप्लोमा इज अवेलेबल एट VIRC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई। और डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स, दैट इज DMRIT, ठीक है। तो these are different diplomas and post graduation opportunities after BSc having a subjects. So that already I tell you, there are so many universities and so many institutes जहाँ पे ये कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में हमारे लिए क्या कोर्सेस है, हम लोग डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स DMRIT कर सकते हैं 1 साल का BSc के बाद, ठीक है। And you will get opportunity in any institute, any medical institute or any medical sorry, yes, in private hospitals are there. So MSc in medical physics, diploma in radiological physics, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, कैलिकट यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पे हम लोग इस प्रकार के पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं BSc के बाद। तो दिस इज अ जॉब ओरिएंटेड कोर्स। आप ये कोर्स करने के बाद आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आज अवेलेबल है। तो जो भी रूरल एरिया के स्टूडेंट्स है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है, जिनको इमीडिएटली ग्रेजुएशन के बाद जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन स्टूडेंट ने तो ये इस प्रकार के कोर्सेज कर लेना चाहिए इमीडिएटली, सो यू विल गेट अपॉर्चुनिटी। तो यस, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, डिप्लोमा इन रेडिएशन मेडिसिन, MSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन, MSc इन मेडिकल फिजिक्स, भरतियार यूनिवर्सिटी कोयम्बतूर। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए है डियर स्टूडेंट्स। या देयर इज अनदर एरिया दैट आई वांट टू शेयर, जो BSc के बाद हम करियर बना सकते हैं, इसमें भी हम पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इज one of the very reputed job in at airports and in aviation industry. So what exactly the air traffic controller? Air traffic controller यानी हम सबको पता है कि जो एयरपोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे जो हमारे जो प्लेन्स और जो एयर ट्रैफिक है, उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे एक सेंटर होता है, और वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेस अपॉइंट किए जाते हैं, दैट इज नोन एज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो माय डियर स्टूडेंट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये भी एक अपॉर्चुनिटी आफ्टर BSc के बाद है। इसमें हमको फिजिक्स सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो एस्पायरेंट्स हु आर प्लानिंग टू बिकम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मस्ट हैव a बैचलर डिग्री इन साइंस with physics and mathematics as a mandatory subject. Somebody. Now this is a problem in our area. The students are not serious about their career. Everything is okay. This is not Daryapur. I also face at my level also, at Murtijapur also. Yes, sir. Yes, that is a fact, Charpe sir. This is a very important thing. आपण याला काहीच करू शकत नाही. विद्यार्थ्यांची मानसिकता याला रिस्पॉन्सिबल है. They are not serious about all these things. Okay, fine. चलो. तो अब यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की मैं बात कर रहा हूँ. ये बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है. मेरे कॉलेज के 2-3 स्टूडेंट यहाँ पे क्लियर, ये इन्होंने एग्जामिनेशन क्लियर हो गए. 2 लोग यहाँ पे ज्वाइन भी हो गए हैं. तो देखिए, ये अवेयरनेस जरूरी है. हमको पता ही नहीं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है. हमको पता है कि BSc के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दो, 5 साल 6 साल हम रहते हैं, लेकिन हम उसमें भी पास नहीं होते,
ठीक है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो रियलिटी को फेस करो यार, रियलिटी को फेस करो, एंड यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. तो यूजी कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है और कुछ पीजी कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके भी कुछ इंस्टीट्यूट्स है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के. तो इसकी एक एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, और ये एग्जामिनेशन जो कंडक्ट की जाती है ये एविएशन मिनिस्ट्री के तरफ से की जाती है, जैसे एयर इंडिया है, ठीक है. तो और ये एग्जामिनेशन हर साल होती है. तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है? एविएशन इंडस्ट्री है, एयर फोर्स है, आर्म फोर्सेस है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है. There are so many opportunities related to air. Okay, so you will get a jobs. So these are the top recruiting companies of air traffic controllers. ऐसे बहुत सारे companies है जो आपको job provide करते हैं after you performing or clear this examination or make your degree, postgraduate degree or degree after BSc. Okay, so these are some institutes जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए है. जैसे SRM यूनिवर्सिटी है अमरावती. ये अमरावती हमारा नहीं है, ये आंध्र प्रदेश का है. सो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, जैसे मैंने बिट्स के बारे में आपको कहा. फिर अमिटी यूनिवर्सिटी है. ये कुछ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है पंजाब में. ये कुछ यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे हम एविएशन इंडस्ट्री या एविएशन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के कोर्सेस कर सकते हैं. लेकिन बीएससी के बाद हम डायरेक्टली ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गेट अ जॉब इमीडिएटली. एंड दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एंड मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ आवर बीएससी सब्जेक्ट. सो ऑल दीज आर द एरियाज having opportunities to us. Okay, there is another area that I want to share, and before I conclude, yes, और एक शेयर करता हूँ मैं एरिया. Yeah, 1 minute. Yeah, this is another area, and this area is a part of our journey after graduation in science, particularly as a physics. So this is one of the brochure of Indian Maritime University at Madras. This is another opportunity for us, my dear students. This is a one central university under the Ministry of Shipping, Government of India. और यहाँ पे भी हमारे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है. ठीक है, अभी ये 2021 का एकेडमिक ब्रोशर है जिसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है. Directly I want to share. This is available. Yeah. Yeah, these are the programs you can see right now. So programs offered by IMU. Now undergraduate programs, that is 4-year BTech. Postgraduate program हमारे लिए important है. That is 2-year BTech Marine Engineering, Naval. ठीक है. Postgraduate diploma भी हमारे लिए है यहाँ पे, Diploma in Marine Engineering. Research program भी there are available. So this is related to the marine. Okay, so these are different campuses, undergraduate programs and postgraduate programs and some diplomas also there. ठीक है, इसमें आप MBA भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद. MBA भी है. और yes, so all these are the programs. So you visit this website. Yeah, तो नॉटिकल डिप्लोमा इन नॉटिकल इंजीनियरिंग है. तो इस ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं BSc नॉटिकल साइंस एंड डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस. ओके, तो इनकी भी एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है IMU CET करके.
और ये एग्जामिनेशन को अपीयर होने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन मिलती है। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स है ये बीएससी, एमएससी इन नॉटिकल साइंस, एमबीए इन नॉटिकल साइंस, ठीक है। तो all these are the opportunities, postgraduate opportunities after BSc. Yeah, these are the MBAs, international transportation and logistics, commercial shipping and logistics. तो जो बड़े बड़े पोर्ट है, शिपिंग पोर्ट्स है, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। अगर हम बीएससी के बाद इस प्रकार के कुछ एमटेक, एमबीए या कुछ एमएससी या डिप्लोमा कोर्सेस अगर हम करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेस करते हैं, तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज my dear students. So this is also one of the area that I want to share with you. Yeah. Fine. So after all this discussion, there are a lot of, but right now I want to conclude my lecture today. So before conclusion, there are so many things. So if you focus on the results, you will never change. If you focus on change, you will get a results. Then success all depends on the second letter, that is you. So it depends on you peoples, what you want to do and what you want to make your career. So once again, thanks to the principal, JDPS College Daryapur, as well as I also thanks Amaravati University Physics Teachers Association, and very important, the head and the faculty, all the faculty members, particularly Dr. Sarpe sir, to give me opportunity to interact with your students, and all the faculty members of your department to give me opportunity. So thanks for your patience and your attention. Thank you very much. Yes, thank you, sir. Before vote of thanks, we take a question answer session, sir. Okay. Is there okay, sir? Yes, there is no problem. Okay, students, if you have any questions, please write in the chat box, or तुम्ही तुमचा जो आहे माइक अनम्यूट करा आणि व्हिडिओ कॉल असला तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही सरांना क्वेश्चन विचारू शकता. Those who have any questions, please unmute and ask question. Yes. आचल, yes. कोणाला काही विचारायचं असेल तर तुम्ही आताही विचारू शकता, नंतरही माझा फोन नंबर आहे, ईमेल ऍड्रेस आहे, आणि मी खूप जवळ तुमच्या 20 किलोमीटरवरच माझं कॉलेज आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही केव्हाही माझ्यासोबत इंटरॅक्ट होऊ शकता. आणि ही जी इन्फॉर्मेशन आहे ही सगळी अवेलेबल आहे. फक्त मी तुम्हाला वेगवेगळे एरियाज सांगितले की तुम्ही कुठल्या कुठल्या एरियामध्ये जनरली आपण काय want to know about the courses of data science. Okay, thank you. Yes, thank you Dhanashri. डाटा साइंस के लिए जैसे मैंने कहा कि ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अभी अवेलेबल हो गई है. जैसी एमआयटी युनिव्हर्सिटी आहे मुंबईची, ज्यांनी डाटा सायन्स मध्ये कोर्सेस आणलेले आहेत, आणि काही इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स IITs, जसं IIT मुंबईनी पण डाटा सायन्सचे कोर्सेस सुरू केलेले आहेत. तर आता हे आपल्या विद्यापीठामध्ये हे कोर्सेस अवेलेबल नाही आहेत सध्या. पण जसं आता आपल्याकडे जर आपण रायसोनी युनिव्हर्सिटी म्हटलं, रायसोनी युनिव्हर्सिटी म्हणजे नागपूर, तर याची एक ब्रांच आपल्या अमरावतीला आहे. तर तिथे त्यांनी डाटा सायन्स मध्ये कोर्स आणलेला आहे. तर अशा प्रकारचे नवीन नवीन कोर्सेस आपल्याकडे लॉन्च होत आहेत, आणि या कोर्सेसला जर आपण प्रिफरन्स दिला तर एक नवीन अपॉर्च्युनिटी आपल्याला मिळू शकते. ओके. येस, आणखीन कोणाला काही क्वेश्चन? हा, बोल आचल. Okay, anybody? Yes, please. Yes, I think there is an audio problem. Achal? You may write your question in chat box also.
Yeah, you can also share with, interact with me in chatbox, through chatbox also. Yeah, there is a phone number also with your teacher. आप मेरे से फोन पे भी बात कर सकते हैं. लेकिन yes, there is a admission fee or fellowship in IITs, isn't it? Yeah, definitely admission fee तो रहेगी. Okay. लेकिन अगर आप मेरिट लिस्ट में कुछ रैंकिंग में आते हैं तो वहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप्स भी आपके लिए अवेलेबल है, फेलोशिप्स भी अवेलेबल है. जैसे मैंने एक रेडिएशन का कोर्स आपको बताया, BARC कंडक्ट करता है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है BSc के बाद. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको 25,000 का स्टाइपेंड मिलता है, और वहाँ पे पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए. ठीक है, और वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी है, बुक्स के लिए भी आपको फेलोशिप दी जाती है. तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है. इट डिपेंड ऑन योर रैंक, इट डिपेंड ऑन योर कास्ट ऑल्सो. पर्टिकुलर कास्ट के लिए भी कुछ कंसेशंस दिए जाते हैं. तो यू गो थ्रू दैट वेबसाइट्स, यू गो थ्रू दैट प्रोसीजर of admission procedures of that course, definitely you will get everything. तो IITs में फेलोशिप्स, बहुत सारी फेलोशिप्स है. ठीक है, नेशनल फेलोशिप्स भी है जो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. Yes, I think this question is from Ankush. Yes. Yeah. Sir, before leaving this program, Yes. I will, one question is that, sorry, Yes. not question, please motivate our student to qualify that NGPE exam which is conducted by IIPT, and please give. Yes. Yeah. अभी देखिए, ये जितनी सारी एग्जामिनेशन मैंने आपको बताई, ये एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन हम लोग करना अगर चाहते हैं और हम एक ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि यहाँ पे मेरे को एडमिशन लेना है. ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अमरावती यूनिवर्सिटी के एरिया में हमको एडमिशन लेना है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए. लेकिन अमरावती यूनिवर्सिटी के एडमिशन MSc करने के बाद हमको अपॉर्चुनिटी कितनी है, और नेशनल इंस्टीट्यूट्स में वहां से MSc करने के बाद या वहां से पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद हमको कितनी अपॉर्चुनिटी है. तो ये थोड़ा अगर हम कंपेयर करते हैं और हमारी एबिलिटी है या हम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमको फर्स्ट ईयर जब एडमिशन होती है हमारी BSc के लिए, वहीं से अगर हम इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं या सेकंड ईयर से शुरू करते हैं, तो 2 साल में हमको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है. और जैसे मैंने बताया कि हमारा जो यूनिवर्सिटी, पेरेंट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है BSc का, वही सिलेबस इन एग्जामिनेशंस को होता है. लेकिन ये सभी एग्जामिनेशंस का पैटर्न, इसकी प्रैक्टिस के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स टीचर्स एसोसिएशन ने एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है जिसको नेशनल ग्रेजुएट फिजिक्स एग्जामिनेशन कहा जाता है, NGPE. और ये एग्जामिनेशन अभी मैंने मेरे कॉलेज में कंडक्ट किया, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के टोटल 119 स्टूडेंट्स, जो विदर्भ में हमारा कॉलेज टॉप में था रिगार्डिंग टू अपीयर द एग्जामिनेशन्स. तो 119 विद्यार्थी या परीक्षेला माझ्या कॉलेजमधून मी बसवले किंवा बसले विद्यार्थी, त्यांना याचं महत्व सांगितलं. आणि त्याच्यानंतर या एक्झामिनेशनचा पॅटर्न अशाच प्रकारच्या एक्झामिनेशन सारखा असतो, जेणेकरून आपल्याला त्याची एक आयडिया येते की परीक्षा कशा असतात, टाइम मॅनेजमेंट आपल्याला कळते, आणि आपला जो सिलेबस आहे त्या सिलेबसवर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन किंवा नॅशनल इन्स्टिट्यूट किंवा नॅशनल एक्झामिनेशनचा पॅटर्नच्या परीक्षा कशा असतात त्याचा तुम्ही म्हणाल की त्याला आपण एक सराव म्हणू किंवा एक अभ्यास म्हणू. याच्यासाठी NGPE नावाची एक परीक्षा दरवर्षी कंडक्ट केल्या जाते. चरपे सर पण त्याचे मेंबर आहेत, तुम्हाला चरपे सर याच्यानंतर सांगतील. आणि माझी अशी इच्छा राहील की चरपे सरांनी पण तुमच्या विद्यार्थ्यांना इथे दर्यापूरच्या मॅक्झिमम मोटिवेट करून या परीक्षेला बसवावं. ही परीक्षा फक्त, या परीक्षेची जी फी आहे ही फक्त 150 रुपये आहे, आणि 150 रुपये आपले कुठेही खर्च होतात. आपण एक मोबाईलचं रिचार्ज मारला तर आपल्याला 500 रुपये लागतात. ठीक आहे, आणि आपण जे करायचं ते करत नाही, भलतंच काहीतरी करत राहतो. तर 150 रुपये जे आहे ते 150 रुपये आपले कुठेही वेस्ट येतात. अशा प्रकारची परीक्षा तुमच्या सांगोलकर कॉलेजमध्ये तुम्ही कंडक्ट करू शकता. तुम्हाला कुठेही दुसऱ्या सेंटरला जाण्याची गरज नाही.
कारण की मागच्या वर्षी मी या परीक्षेला सुरुवात केली. जेव्हा मी सुरुवात केली तेव्हा फक्त मी एक नोटिफिकेशन माझ्या डिपार्टमेंट ऍडव्हर्टाईज लावली या परीक्षेची. 8-10 विद्यार्थी माझ्याकडे आले. 8-10 विद्यार्थ्यांनी इंटरेस्ट दाखवला की सर आम्हाला ही परीक्षा द्यायची आहे. मी त्यांच्या कोऑर्डिनेटरला फोन केला आणि फोन केल्यानंतर त्यांनी मला एवढंच विचारलं की आपका सेंटर कहाँ पे आहे, कारण की यांचं जे मेन सेंटर आहे डेहराडून आहे आणि डेहराडून वरून ही परीक्षा कंडक्ट केल्या जाते. तर या जे कोऑर्डिनेटर आहेत डॉक्टर त्यागी म्हणून, त्यांच्याशी मी पर्सनली कम्युनिकेट केलं की आमच्याकडचे 8-10 विद्यार्थी परीक्षा देण्यात इंटरेस्टेड आहेत. तर त्यांनी मला एवढं सांगितलं की किती विद्यार्थी इंटरेस्टेड आहे. मी म्हटलं माझ्याकडे फक्त 8 ते 10 विद्यार्थी इंटरेस्टेड आहेत. तर त्यांनी मला हे सांगितलं की 20 विद्यार्थी जर तुमच्या इथे इंटरेस्टेड असेल तर मी तुम्हाला डायरेक्ट सेंटर प्रोव्हाइड करतो, कारण की सेंटर हे नागपूरला होतं आणि माझ्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांची ती परिस्थिती नव्हती की ते नागपूरला जाऊन परीक्षा देतील. फायनान्शियल कंडिशन नव्हती. तर मी त्यांना असं म्हटल्याबरोबर त्यांनी डायरेक्टली मला सेंटर प्रोव्हाइड केलं. आणि फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन 90 स्टुडंट मागच्या वर्षी अपियर झाले. यावर्षी 190 स्टुडंट अपियर झाले. आणि फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन जॅम मध्ये आमच्या कॉलेजचा एक विद्यार्थी यावर्षी सिलेक्ट झाला. ठीक आहे. तर अशा प्रकारचे आपण जर ठरवलं तर आपण हे करू शकतो. तर या परीक्षेची पूर्ण माहिती I will forward to the professor, and definitely all the students of Daryapur and all these institutes from Sangutkar Mahavidyalaya should appear to this examination. It's a very good examination, as well as इसमें certificates भी आपको मिलते हैं और scholarship भी मिल जाती है. और ये जो मैंने examinations बताए, अगर आपने NGPE में rank किया इंडिया लेवल पे तो आपको इन इंस्टीट्यूट्स में डायरेक्टली एडमिशन भी ये प्रोवाइड कर देते हैं. So these are the benefits of these examinations. Okay. Sir, there is one question in chat box from Achal Wankar. Okay. Yeah. Thank you, Achal, for. There are many different types of research and researcher, but may not be scientists. Sir, my question is that does it a lot of money to? Okay. Yeah, it's a very good question. I know that हम लोग एक तालुका लेवल के स्टूडेंट्स है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं. मैं भी मेरे बच्चों के साथ रहता हूँ तो वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम सेम है. देखिए, अब जैसे मैंने कहा आप सबको, ये जो मैंने आज का लेक्चर दिया इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने हर्डल्स डेवलप किए. ठीक है. देखो अभी भी चल रहा है कुछ ना कुछ. या तर इसमें क्या है आचल कि नेशनल इंस्टीट्यूट से अगर आप आपकी पढ़ाई करते हैं, जैसे एमएससी करते हैं या पीएचडी करते हैं, तो रिसर्च या रिसर्च करने के लिए जो आपको कॉस्ट लगती है वो कम लगती है, क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड रिसर्च होते हैं. वहाँ पे आपको फेलोशिप मिलती है, वहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलता है. ठीक है. तो वहाँ पे आपको जो मनी का मैटर है वहाँ पे बहुत कम आएगा या रहेगा भी नहीं, क्योंकि जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो आपके मेंटर्स होते हैं, वही आपको ये सब एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं, उनकी लैब प्रोवाइड करते हैं, सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. तो ये डिपेंड ऑन यू. तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा सा आगे की सोचे. हम लोग दरियापुर से निकलते हुए अमरावती में रुकते हुए अदर देन महाराष्ट्र में जाने की कोशिश करें, या कहीं भी हम लोग सेटल हो सकते हैं. इंडिया हमारा ही है. ओके. तो रिसर्चर बनने के लिए जो मनी, ओके, रिसर्चर बनने के लिए या साइंटिस्ट बनने के लिए मनी लगता है इज अ वेरी रॉन्ग प्रेडिक्शन. ठीक है. इट डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी, इट डिपेंड अपॉन द इंस्टीट्यूट. आप कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट हुए, आपने कहाँ से रिसर्च किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. आई थिंक यू विल गेट इट द आंसर. आचल. Yes, any questions, students? Yes, thank you, Achal. ओके, आणखी कोणाला काही विचारायचं आहे सरांना? सर, वन क्वेश्चन इन चॅट बॉक्स. Okay, no, it is. Thank you. No, there is no question. Okay. Thank you. So, 1 minute, sir. Yes. So I think मुलांचे सगळ्या स्टुडंट्सचे क्वेश्चन्स झालेले आहेत. Now we are Okay. moving to our last part, that is vote of thanks. Yes. So first of all, thank you, sir. This knowledge of opportunity in post graduation after the graduation is very useful to our students to select their right career oriented courses.
So I am thankful to Dr. Kanwar sir, Principal of JD Patil Sangrudkar Mahavidyalaya, Amaravati University Physics Teacher Associate, to arranging this nice guest lecture series. Once again, thank you, sir. Special thank you to my dear students, जिन्होंने patiently सुन लिया है. So I think we are stop here. So Yes, thank thank you, you sir. very much. Thank you. Thank you for giving me opportunity. Thank you, my dear students and all you. Thank you very much. Thank you, sir. Students, 2 मिनिटं तुम्ही थांबा, लिहू नका हो. Please don't leave the meeting, students. ओके स्टुडंट्स, तुम्ही 3 दिवस चांगल्या प्रकारे लेक्चर ऐकलेत, त्याबद्दल सर्वात पहिले तुमचं अभिनंदन. आता उद्यापासूनचे आपले लेक्चर्स आहेत, 2 जे लेक्चर्स आहेत ते बेसिक. पहिला लेक्चर आहे उद्याचा सेमी कंडक्टर, नंतर दुसऱ्या दिवशी आहे ट्रान्झिस्टर. तर माझ्या विद्यार्थ्यांना एक सांगायचं आहे की आपले जेवढे प्रॅक्टिकल्स आहे, बीएससी सेकंड इयर असो, थर्ड इयर असो किंवा बीएससी फर्स्ट इयर असो, सेमी कंडक्टर हा व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. त्यातले बऱ्याच विद्यार्थ्यांना सिम्बॉल नाही माहित असते, काय काय सेमी कंडक्टर बेसिकच माहित नाहीये. 11वी 12वी तुम्हाला सेमी कंडक्टर होतं, पण काय होतं आणि काय केलं हे तुम्हाला माहित आहे. तर माझं एकच सांगणं आहे, उद्याचा जो लेक्चर आहे त्यावेळेस सर्किट डायग्राम्स येणार, सिम्बॉल्स येणार, हे सगळं पुस्तकात अवेलेबल आहे. बट टू टेक द शॉर्ट नोट्स, तुम्ही तुमचं पेन पेन्सिल यूज करा आणि क्वेश्चनिंग विचारू शकता. आणि कृपया करून पुन्हा एकदा सांगतो, चुकून होतं मलाही माहित आहे, तुमचा माईक आणि व्हिडिओ याच्याकडे तुम्ही लक्ष द्या, ठीक आहे. आणि चुकूनही जेव्हा चालू होते पीपीटी, तेव्हा त्या पीपीटीवर बोट नका लावू. तर तुम्ही एखादी गोष्ट सिलेक्ट करून जर त्याला बोट लावलं तर ती समोरच्या टीचरची जी स्क्रीन असते ती टॅम्पर्ड होते आणि ते टॅम्परिंग जे आहे शेवटपर्यंत राहते. जसं आज कोणीतरी एका मुलीने केलं, तर त्या मुलीला काय होते, तिने जे केलेलं बोट होतं असं कलरिंग केलं, ते पूर्ण वेळ तसंच राहिलं. तर प्लीज पुन्हा असं काही करू नका. उद्या आपला लेक्चर बरोबर 12:15 चालू होईल. आणि एक लक्षात घ्या, जेव्हा 90 पार्टिसिपेंट होतात, कधी कधी असं होत आहे की पहिल्या दिवशी सुद्धा झालंय की जे आपले पाहुणे होते इनॉग्रेशन मध्ये चीफ गेस्ट, त्यांनाच मीटिंग मध्ये ऍडमिट होता येत नव्हतं. तर सर्व विद्यार्थ्यांना मी सूचित करतो की मी 90 स्टुडंट झाल्यानंतर मी फक्त जर आपले चीफ गेस्ट किंवा चीफ स्पीकर जर ऍडमिट झाले नसेल तर मी थोडं 5 मिनिटं थांबवावं लागेल तुम्हाला. तर एकदा चीफ गेस्ट ऍडमिट झाले, गेस्ट स्पीकर, की मग नंतर मी जेवढे काही विद्यार्थी आहेत त्यांना ऍडमिट करतो. आणि दुसऱ्या एक सांगायचं की काय, बरेच विद्यार्थी काय करतायत की ऍडमिट होतात, 5-10 मिनिटं ऐकतात, पुन्हा चालले जातात, 5 मिनिटांनी पुन्हा अजून ऍडमिट होतात. तर हे काम करताना मला इथे इंट्रोडक्शन पण द्यायची असते. तुमच्यासारखं मी लेक्चर ऐकत नाही असं नाही की मी फक्त व्हिडिओ ऑफ असतो, तर मी पूर्ण लेक्चर ऐकतो. तर मला ते 10 वेळा ते ऑपरेट करावं लागतं. कृपया खूपच अर्जंट काही काम असलं, काही असेल तर तुम्ही लिव्ह व्हा मीटिंग मधनं, पण 10 वेळा येणं जाणं करू नका मीटिंग मध्ये, ठीक आहे. ओके, आय होप हे सगळं आज तर तुम्हाला समजलं असेल. 3 दिवसात आपले 3 लेक्चर झालेले आहेत. तुमचा खूप चांगला रिस्पॉन्स आहे. सर्वात पहिले तुमचं सर्वांचं थँक्यू. ओके, सो उद्या आपण बरोबर 12:15 ऍडमिट होऊ. कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही शेअर करा आणि माझ्या सूचना समजल्या असतील तुम्हाला तर थंब दाखवून द्या सगळ्यांनी आणि वी लिव्ह द मीटिंग. ओके, तुम्ही मीटिंग लिव्ह करू शकता स्टुडंट्स.